Yes, good afternoon everyone. So now we are going to continue with our contract act. We are going to continue with the offer and acceptance. Just wait for a few minutes. Let me share my screen. Yes, as I said, we are going to continue with offer and acceptance, our next topic. Okay, so in our previous lecture only, we discussed about the what is offer. Okay, so offer again means a kind of proposal. So here again we have a same definition for proposal, or you say an offer. So proposal means same thing, just for the reminder sake I'm going to revise it within a few minutes. After that we will start with the essentials of a valid proposal. Okay, so when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view to obtain the assent of another, such act और जो absistence हमने डिस्कस किया वो it's together makes a proposal. So according to Indian Contract Act, proposal is a very first step towards the formation of a contract. अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहला काम जो हमको करना पड़ेगा that is we have to give a proposal, or you can say an offer. Okay, both are the synonymous only. So when you make the first step towards your contract is to give proposal. अब ये जो proposal या फिर जो offer है, it may not only to obtain the assent to do a particular act, जैसा कि हमने definition में पढ़ा कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए ही ऑफर नहीं होता. समटाइम्स इट्स फॉर abstaining from doing anything, that is किसी काम को ना करने के लिए भी प्रपोजल लिया जाता है. This it is also important to note down that in a two context we are taking the meaning of the term proposal, to do particular act or not to do a particular act. Okay, so this is what the meaning or definition of the term proposal is. Next, come to the essentials of the valid proposal. So essentials of the valid proposal is, first one is offer is always in the form of a request. Simple, it means you say offer or you say proposal. आप ऑफर या प्रपोजल जो भी दीजिए टू प्रपोजी और ऑफरी, दैट शुड बी इन अ रिक्वेस्ट फॉर्म. जो प्रपोजर है, दैट इज़ जो ऑफरर है, ही कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स. आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते. दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था, दैट इज़ ए ऑफ़र कर रहा है बी को उसके घर परचेज़ करने के लिए या फिर उसकी कार परचेज़ करने के लिए. अगर ए बी को ऑफ़र कर रहा है कि वो उसकी कार को परचेज़ करे तो रिक्वेस्ट फॉर्म में करेगा ना. दैट इज़ आई एम ऑफरिंग यू टू परचेज़ माई कार, क्या आप मेरी कार इतने में ख़रीदोगे. हम उसको डिक्टेट नहीं करेंगे, डिक्टेटेड टर्म्स में नहीं बोलेंगे. इट शुड बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट ऑनली. ऐसे नहीं बोलेंगे ना आपको मेरी कार खरीदनी ही पड़ेगी. ए बी को ऐसा ऑफर नहीं देगा दैट यू हैव टू परचेज माई कार. वो सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे. तो ऑफर शुड बी इन दिस मैनर, दैट इज इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट. सेकेंड एसेंशियल कंडीशन इज लीगल रिलेशंस. What is legal relations? Second point says an offer must be intended to create and capable of creating legal relations. जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया, that is legal obligations वाले contracts या agreements होने चाहिए. अगर legal relations नहीं है तो फिर वो contract हमारे लिए valid नहीं होता.
लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कॉमन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द प्रपोजर ऑल्सो एंड ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सेप्टर ऑल्सो। तो जो प्रपोजर है या जो प्रपोजी है, दोनों की तरफ से कॉमन टॉपिक, कॉमन इंटेंशन पे हम लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड दिस सिचुएशन इट गिव्स राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। जब आप कॉमन इंटेंशन के साथ कॉमन टॉपिक को लेके लीगल रिलेशंस में एंटर करते हो, तो फिर लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं। So, if you are promising to someone without creating any legal relation, so that is not contract, because essentials of the valid proposal is only to have a legal relations. अगर लीगल रिलेशंस नहीं है तो वैलिड प्रपोजल नहीं है, वैलिड प्रपोजल नहीं है, प्रपोजल ही वैलिड नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? बात तो पहले ही ख़त्म हो गई ना, बिकॉज हमने इसेंशियलिटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इसेंशियल्स होने के लिए सबसे पहले तो उसमें प्रपोजल होना चाहिए। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली जो प्रपोजल है उसका फॉर्म कैसा होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिक्वेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट से इसकी लीगल रिलेशंस वाले प्रपोजल होना चाहिए। अब जैसे मैं ये प्रपोजल नहीं दे सकती ना कि मैं आपको 5 किलो, सेम एग्जांपल आप सब जगह यूज़ कर सकते हो। इट्स लाइक आई कैंट से कि मैं 2 किलो ड्रग्स आपको देती हूँ, बदले में आप अपना घर मुझे दे दो, तो इट इज़ नॉट वैलिड, ये नहीं चाहिए। इसके अलावा बिकॉज ये तो अनलॉफुल हो गया, तो अनलॉफुल इलीगल रिलेशंस तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। इट शुड बी लीगल इन नेचर, लीगल ऑब्लिगेशन होगी। इसके अलावा वी हैव अ वन मोर फेमस एग्जाम्पल। There is a one leading case, Kalai Heathers versus Shekha case, related to legal relations. In that case, for example, consider there was A as a one person who invites B for a dinner. A ने B को डिनर के लिए इनवाइट किया और A ने B को बताया that कि आप डिनर के लिए आओगे, I will make some good arrangements for you डिनर के लिए। B को ये बात पता थी कि A ने बी के लिए डिनर पे काफ़ी अरेंजमेंट्स या प्रिपरेशंस या एक्सपेंसेस किए हैं और तैयारी भी की है। स्टिल बिकॉज ऑफ एनी इम्पोर्टेंट वर्क बी जो है ही फेलियर्स टू अटेंड, यानी बी जो है वो अटेंड नहीं कर पाया डिनर को ए के साथ। इन दिस सिचुएशन ए ने क्या किया? केस फाइल किया बी के ऊपर, दैट इज़ ए फाइल सूट अगेंस्ट बी। क्यों किया? For the price of money which is not consumed by the B. यानी A ने कहा, B ने मुझसे प्रॉमिस किया था, A ने ऑफ़र किया B को कि क्या तुम मेरे घर पे डिनर पे आओगे, अ काइंड ऑफ ऑफ़र। B ने एक्सेप्ट किया, यस आई विल कम, दैट इज़ B ने प्रॉमिस किया कि मैं आऊँगा। तो इट मीन्स ऑफ़र हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, बट कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, दैट इज़ बी डिनर के लिए नहीं गया। ए ने जितनी भी प्रिपरेशंस की थी, फूड की, एक्सपेंसेस की, वो सब क्या हो गया? लॉस हो गया। वो उतना लॉस में चला गया ना, खाना भी वेस्ट हो गया। उतना खाना ये अकेले नहीं खाएगा जितना वो बी के साथ डिनर की प्रिपरेशन किया था। तो ए ने बी पे नॉन कंज्यूम्ड फूड के लिए केस कर दिया। तो इट वॉज हेल्ड दैट इन दैट केस ए का जो स्यूट है, दैट इज़ claiming price for non-consumption of the food should be dismissed. That is to end with. Dismiss मतलब ख़त्म कर देना, वापस कर देना। Why? Reason is invitation by A to B for dinner, it does not create legal relation. ये आपके moral relations को increase करता है। B की moral duty थी कि वो प्रायर इन्फॉर्म करे कि वो नहीं आ रहा है, या फिर वो नहीं गया, तो यहाँ कोई लीगल रिलेशंस वाली बात नहीं थी। तो जब तक लीगल रिलेशन नहीं आता, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, तब तक प्रपोजल नहीं आता, तो फिर आप कुछ भी वैलिड फॉर्म में नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो आपके एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन है बिटवीन द पार्टीज, इट शुड बी लीगल इन अ नेचर। तो वी हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस वेल फेमस केस कलाई हल्दर्स वर्सेस शेख का केस, जिसमें ये बताया गया था कि इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये मोरल ड्यूटीज़ पे बेस्ड होते हैं, ना कि लीगल रिलेशंस पे। दैट्स वाई ए इज़ नॉट लाइबल फॉर क्लेमिंग दैट अमाउंट। तो ए को
जो अमाउंट जो भी उसने लगाया था डिनर में वो पैसे उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि लीगल रिलेशन नहीं था तो प्रपोजल नहीं था, प्रपोजल नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो फिर तुम क्लेम क्या करोगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वे हैव अ टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, अनएम्बिगुअस, सर्टेन. इसका क्या मतलब हुआ? टर्म्स ऑफ ऑफर दैट इज जो भी ऑफर या प्रपोजल आप प्रपोजी को या ऑफरी को दे रहे हो, इट मस्ट बी डेफिनेट, दैट इज क्लियर, अनएम्बिगुअस, दैट इज वेग और सर्टेन. यानी एकदम क्लियर, सिंपल होना चाहिए, वेग, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए. दैट इज़ मैंने जो ऑफ़र दिया वो इतना कंफ्यूजिंग ऑफ़र है कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है कि करना क्या है. आई एम गिविंग 2-3 ऑप्शंस दैट आई वांट टू सेल माई हाउस. मैं सोच रहा हूँ कि 12-13-14 लैक्स में बेच दूँ अपना घर, तो दिस इज़ एम्बिगुअस ऑफ़र. मतलब ये जो ऑफ़र है इट इज़ नॉट क्लियर फॉर्म का, ये अनएम्बिगुअस है जिसमें क्लैरिटी नहीं है. तो ऑफ़र जो है वो सॉरी इट्स एम्बिगुअस है, अनएम्बिगुअस होना चाहिए. दैट इज़ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, यानी एकदम क्लियर होना चाहिए. दैट इज़ आई एम ऑफरिंग माई हाउस इन 10 लाख रुपीज़, आपको लेना है क्या? दिस इज़ माई ऑफर. एकदम क्लियर. हाँ, अगर आप क्लियरिटी नहीं देते हो, एम्बिगुअस बोलते हो, फिक्स नहीं हो, 3-4 ऑप्शंस में बात करते हो, 2-3 मीनिंग्स में बात करते हो, दैट इज़ योर टर्म्स ऑफ ऑफर्स आर नॉट क्लियर. तो ऑफ़र ऐसा नहीं होना चाहिए. When we talk about the essentialities of the valid proposal, then it should be in a clear form. It should be in a definite. It should not be vague. It should be unambiguous. It should be indefinite. So that acceptor जो है वो accept करके किसी भी तरीके के legal relations को create कर सके. अगर आपका ऑफ़र unambiguous है या आपका ऑफ़र वेग है तो फिर यहाँ पे लीगल रिलेशंस क्रिएट होते हैं ऐसा कंसिडर नहीं किया जाएगा. इट मीन्स योर प्रपोजल इज़ नॉट वैलिड ऑनली. देन अगेन आपका प्रपोजल वैलिड नहीं है तो बात कोई आगे ही नहीं बढ़ेगी. प्रपोजल वैलिड नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लीगल रिलेशंस नहीं आएगा. तो फिर कुछ भी हम क्लेम नहीं कर सकते इन केस ऑफ अ लॉस, बिकॉज देयर इज़ नो एग्रीमेंट ऑन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एन ऑफर कैन बी in an express or implied form from the circumstances. यानी सिंपली यही एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं यानी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर ऑन, जिसमें हमने देखा कि एक्सप्रेस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन अ ओरल मैनर. सो कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑफर्स विच आर इन अ ओरल और राइटिंग, दे आर वी से इन एक्सप्रेस फॉर्म. और implied offer means which is understood because of the behavior of the parties. तो अगर आपका जो ऑफ़र है वो एक्सप्रेस फॉर्म में है या फिर इम्प्लाइड फॉर्म में है, दैट इज़ एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड यानी कि आप ओरली या राइटिंग में दे रहे हो, या फिर इम्प्लाइड यानी बिहेवियर ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड है, आपका बिहेवियर पे डिपेंड है, तो दैट इज़ इम्प्लाइड वाला. तो इम्प्लाइड के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे. दैट इज़ एज सुन एज जैसे ही आप टिकट्स परचेज करते हो रेलवे के, तो यू एक्सेप्ट द ऑफ़र ऑफ द रेलवे कि वो पैसेंजर को कैरी करेंगे. मतलब ये रेलवे ये ऑफ़र जो है पैसेंजर्स को कैरी करने का एग्री करता है. जैसे ही रेलवे आपको टिकट इशू करता है तो ऑटोमेटिकली इट इज़ प्रिज्यूम्ड. ऐसा नहीं है ना कि टिकट लेने के बाद कोई हमको बताने आता है कि भाई आपने टिकट लिया है तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, या आप रेलवे में चढ़ सकते हो, या आप ट्रेन में चढ़ सकते हो. नो, जैसे ही एज सुन एज वी परचेज टिकट्स ऑफ द रेलवे, वी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अ रेलवे कि वो हमको कैरी करेंगे एज अ पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेम एग्जाम्पल एक और हमने डिस्कस किया था. इट्स लाइक स्टेपिंग इन टू द रेस्टोरेंट और कंज्यूमिंग फूड क्रिएट्स एन इम्प्लाइड प्रॉमिस. ये भी एक इम्प्लाइड प्रॉमिस इंडिकेट करता है कि आप रेस्टोरेंट्स में अगर एंटर करते हो और डायरेक्ट ऑर्डर करते हो कोई भी फूड कंजप्शन के लिए, तो एज सुन एज यू ऑर्डर द फूड फॉर द कंजप्शन, वैसे ही वो इम्प्लाइड होता है. वी डोंट डिस्कस कि हम आपको कितना पे करेंगे या क्या करेंगे. द सिंपल थिंग इज ऑफर इट कैन बी इन एनी फॉर्म, in express way, that is writing, oral, in implied way. In both the situation it is accepted.
हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक्सप्रेस वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स या जो ऑफर्स होते हैं दे आर वैलिड इन नेचर और इम्प्लाइड वाले वैलिड नहीं होते। इवन इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन में का एक पार्ट है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इवन क्लासिफिकेशन में एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑनली। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट तो बेस्ड ही है पूरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जिसको भी हमने बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की हैं आप उनसे क्लेम कर रहे हो अमाउंट, योर रिटन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग दैट बेसिक नेसेसिटीज़। तो बेसिक नेसेसिटीज़ आपने जब माइनर को, मैंने एग्जांपल दिया था कि हम माइनर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब आप माइनर को बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करते हो तो देयर वाज नो एग्रीमेंट बिटवीन द माइनर एंड यू। माइनर और आपके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, बट स्टिल फिर भी हमने मोरल ग्राउंड्स पे बेस्ड होकर उसको बेसिक नेसेसिटीज़ दी थी। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हमने उसे दी थी वो बेसिक नेसेसिटीज़ के बदले में हम अमाउंट क्लेम कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज़, तो दैट इज़ ऑल्सो वैलिड। तो ऑफ़र जो है आपका वो एक्सप्रेस में हो, राइटिंग में हो, ओरल में हो, इम्प्लाइड में हो, सारे फॉर्म्स में क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। किसी भी फॉर्म का ऑफ़र, जितने भी क्लासिफिकेशंस आपने पढ़े हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में से किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो है, किसी भी टाइप का ऑफ़र जो है वो इनवैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। यस, नेक्स्ट वी हैव एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। दिस इज़ वन ऑफ द key point in our offer is that is offer must be communicated. Consider think about that when there is no communication, अगर communication ही नहीं होगा it means there is no offer। अगर communicate ही नहीं किया गया है, ऑफ़र के बारे में कोई बात बताई ही नहीं गई है, तो फिर हम कैसे कंसिडर करेंगे कि ऑफ़र है। कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना, कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफर। कम्युनिकेशन इज़ अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द प्रपोजल एंड एक्सेप्टर। जो प्रपोजर प्रपोज कर रहा है, दैट इज़ जो प्रपोजर हमको ऑफ़र दे रहा है, उसके और एक्सेप्टर के बीच में एक लिंक होता है कम्युनिकेशन का, ऑफ़र के। तो जब आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो ऑफ़र के बारे में पता कैसे चलेगा, पता ही नहीं चलेगा तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अगेन बात ही ख़त्म हो जाती है। सो ऑफ़र इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इफ़ देयर इज़ नो कम्युनिकेशन देन देयर इज़ नो ऑफ़र एट। ऑफ़र विच इज़ मेड, ऑफ़र एक ऐसी चीज़ है विच मेक टू रिक्वायर टू कम्युनिकेट टू द एक्सेप्टर, विच इज़ रिक्वायर्ड ऑनली। मतलब आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा एक्सेप्टर, अदरवाइज़ वो ऑफ़र कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। अगेन there is a one famous case law related to this, that is लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में क्या हुआ था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त लालमन शुक्ला के ही मुनीम थे। मुनीम इट्स अ वेरी ओल्ड केस। उस टाइम पे जो पर्सनल सर्वेंट्स या जो टीए होते थे उनको मुनीम कहा जाता था। तो यहाँ पे ये जो मुनीम है ये लालमन शुक्ला के घर के मुनीम है, मतलब उनके घर के पर्सनल हाउस होल्ड वर्ड्स को संभालते हैं। हुआ यूँ कि लालमन शुक्ला जो हैं उनकी गलती से, लालमन शुक्ला ने तो केस किया था, गौरी दत्त की गलती से, गौरी दत्त के मुनीम जो लालमन शुक्ला है, गौरी दत्त ने अपनी फॉल्ट से, उनकी गलती से उनका नेफ्यू गुम गया। दैट इज़ उनको अपने नेफ्यू को फाइंड आउट करना था। तो गौरी दत्त ने अपने मुनीम को भेजा, दैट इज़ लालमन को भेजा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला ने केस किया है गौरी दत्त पे। गौरी दत्त लालमन शुक्ला का मास्टर है। तो मास्टर ने सर्वेंट से कहा, दैट इज़ गौरी दत्त ने अपने मुनीम से कहा लालमन शुक्ला से कि मेरा नेफ्यू गुम गया है, आप जाके उनको ढूंढ लो, आप जाइए और उसको ढूंढिए। ओके ठीक है, लालमन शुक्ला ही वेंट, और जाने के बाद ही वॉज फाइंडिंग आउट कि कहीं उसको वो बॉय मिल जाए जो कि गौरी दत्त का नेफ्यू है। इन दैट पीरियड, यानी कि लालमन शुक्ला ऑलरेडी घर से जा चुका है नेफ्यू को ढूंढने के लिए। इन दैट पीरियड, इन दैट 2-3 days इन बिटवीन ओनली, गौरी दत्त ने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट दिया, जगह जगह पे पोस्टर्स लगा दिए कि जिसे भी मेरा नेफ्यू फाइंड आउट होता है उसे मैं 5000 रुपीज़ का इनाम दूँगा।
ओके, बट हुआ क्या, 3-4 दिन के बाद लालमन शुक्ला, दैट इज़ द मुनीम ऑफ द गौरी दत्त, उसका जो सर्वेंट था उसे ही वो बॉय मिला, दैट इज़ लालमन जो था, ही फाउंड ओनली द बॉय एंड आफ्टरवर्ड ही क्लेम द रिवॉर्ड। मतलब बॉय को उसने ढूंढ भी लिया और बाद में उसने रिवॉर्ड को क्लेम किया। बट एट द टाइम जब गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को भेजा था कि आप जाओ और मेरे भतीजे को ढूंढ के लाओ, उस टाइम पे ही वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस ऑफर, यानी उस टाइम पे ही डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द रिवॉर्ड। उस टाइम पे लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि अगर वो उस बच्चे को ढूंढ के लाता है तो 5,000 रुपये का उसे इनाम मिलेगा। मतलब ये ऑफ़र 5,000 का डायरेक्ट कम्युनिकेटेड टू लालमन शुक्ला नहीं था। सिर्फ कम्युनिकेटेड ही नहीं, लालमन शुक्ला के तो नॉलेज में भी नहीं था कि इनाम मिलेगा। वो क्यों गया था ढूंढने के लिए? एज अ सर्वेंट ऑफ अ गौरी दत्त। मीन्स ये जो अमाउंट का रिवॉर्ड का जो ऑफ़र था, इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू लालमन शुक्ला, उसको पता भी नहीं था और बच्चा उसी को मिला। ही फाउंड द बॉय और लाने के बाद उसे पता चला कि अरे मालिक ने तो इनाम रखा था कि जिसे भी बच्चा मिलेगा उसे 5,000 रुपये देना है। तो आफ्टरवर्ड्स ही इज़ क्लेमिंग आफ्टरवर्ड्स कि मुझे मिला था तो ये पैसे मुझे दे दो। बट कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप रिलेशंस को देखोगे, देयर इज़ वन इसेंशियल कंडीशन दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो यहाँ पे तो ऑफ़र लालमन शुक्ला को कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था बिकॉज ही वॉज नॉट अवेलेबल ओनली। वो तो ऑलरेडी फाइंड आउट करने के लिए बच्चे को बाहर पहले से जा चुका था एज अ सर्वेंट ऑफ अ मास्टर्स दूसरे रिलेशन में। तो यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया दैट ही कैन नॉट क्लेम दैट रिवॉर्ड। इट वॉज हेल्ड दैट लालमन जो है, दैट इज़ मुनीम ऑफ द गौरी दत्त, ही कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड बिकॉज he had no knowledge of the existence of an offer when he found the boy। यानी जब उसे वो उनका नेफ्यू मिला उस टाइम पे कोई नॉलेज नहीं थी, इसीलिए हम कंसिडर करेंगे कि ऑफ़र वाज नॉट कम्युनिकेटेड। तो अगर किसी ऑफ़र को कम्युनिकेट ही नहीं किया गया है तो वो तो ऑफ़र हुआ ही नहीं, क्योंकि पता होना चाहिए। अब अगर बाद में वो रिवॉर्ड को क्लेम करता है आने के बाद तो इट इज़ नॉट वैलिड। तो कोर्ट ने ऐड किया क्योंकि कम्युनिकेशन का होना इज़ वेरी एसेंशियल एंड की पॉइंट इन अ ऑफ़र, और अगर आप उसको लैक करते हो, कम्युनिकेशन नहीं है, लेटर ऑन आपको बात पता चलती है एक्ट को करने के बाद, काम को करने के बाद, तो आपको वो बेनिफिट नहीं दिया जाएगा बिकॉज कंडीशन एसेंशियल है कि कम्युनिकेट होना चाहिए। जब बच्चा मिला तब कम्युनिकेटेड नहीं था रिवॉर्ड के बारे में, तो फिर आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड के केस में अगेन दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस केस अबाउट द लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ओके, नेक्स्ट वी हैव एन ऑफर मस्ट बी कंडीशनल। दैट इज़ जो ऑफ़र है वो कंडीशनल होना चाहिए। कंडीशनल मतलब देयर मे बी अ कंडीशंस इन द ऑफर। कंडीशनल ऑफर्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेम एग्ज़ाम्पल को कैरी ऑन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम ए अपना घर बी को बेच रहा है 10,000 रुपीज़ में। तो जब ए अपना घर बी को 10,000 रुपीज़ में बेच रहा है तो देयर मे बी सम कंडीशंस इन बिटवीन। जैसे कि 10,000 में बेचने के बदले हम आपको 2,000 रुपये अभी दे देंगे, रिमेनिंग 8,000 बाद में देंगे, या 5,000 अभी ले लीजिए, रिमेनिंग अमाउंट हम बाद में क्लेम करेंगे। या हम रूम के पोजीशन से लेके कंडीशंस को आगे पीछे कर सकते हैं। दैट इज़ कंडीशंस को आगे पीछे कर सकते हैं मीन्स कि ये कर लेंगे, इट्स लाइक कि डील हम आज कर रहे हैं 2 अप्रैल को, 5 अप्रैल को मैं आपको हाफ अमाउंट दे दूँगी, लेकिन रूम का पोजीशन आप मुझे मई में दोगे। तो यानी कि जो ऑफ़र है इट मे बी कंडीशनल ऑफर्स हो सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट ऑल्सो मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द अनदर पार्टी। तो इट मे बी कंडीशनल बट कंडीशंस मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। This is one of the again essential key point, that is offer must be communicated.
नेक्स्ट वी हैव ऑफर मे बी कंडीशनल ऑल्सो, दैट इज़ जो ऑफ़र है वो कंडीशनल भी हो सकता है, सॉरी कंडीशनल वाला तो मैंने बता दिया. नेक्स्ट वी हैव इनविटेशन टू ऑफर. इनविटेशन टू ऑफर इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर. इनको हम स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर भी कहते हैं. तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इट इज़ अगेन वेरी एसेंशियल टू नो अबाउट द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर. जनरली ऑफर का मतलब तो हम कब से समझ रहे हैं, फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, दैट इज़ व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of the another. Such a act or abstinence is said to be make a proposal, that is only the offer. Invitation to offer में क्या है? ऑफ़र दिया नहीं है, वी आर मेकिंग एन इन्विटेशन टू ऑफ़र. हम ऑफ़र को ही इनवाइट कर रहे हैं. दैट इज़ अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफ़र. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेंगे, जैसे कि कोई प्राइस लिस्ट हो गई, या कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया, कोई विंडो डिस्प्ले हो गया, कोई टेंडर हो गया, कंपनी शेयर्स हो गए, कैटलॉग्स हो गए, होटल का मेन्यू हो गया. ये सारी चीज़ें क्या हैं? या फिर किसी स्टेशनरी शॉप का डिस्प्ले हो गया. ऑल दीज आर इन्विटेशन टू ऑफर, दे आर नॉट डायरेक्ट ऑफर. सिंपली फॉर्म में अंडरस्टैंड करने के लिए वी विल टेक वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, हम कॉलेज के बाहर देखते हैं देर आर टू मेनी स्टेशनरी शॉप्स. इट्स लाइक, क्योंकि कॉलेज है तो उसके बाद स्टेशनरी शॉप्स ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे अट्रैक्टिव पेन, पेंसिल, पाउच एंड ऑल अदर थिंग्स रिलेटेड टू योर स्टडी मटेरियल्स, या प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हैं तो उसके मटेरियल्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं. सो इन दैट केस, आप कॉलेज से घर आ रहे थे, आपको स्टेशनरी शॉप पे एक पेन देखी आपने जो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगी. तो आप शॉप पे गए एंड यू सेड कि आपको वो पेन ख़रीदनी है. तो शॉपकीपर से आपने कीमत पूछी कितने की है. ठीक है, चलो, शॉप ओनर ने कहा भाई 10 रुपये की है. आपने कहा दे दो. उसने कहा नहीं, मुझे बेचनी नहीं. तो व्हाट यू विल से, यार भाई बेचनी नहीं है तो आपने डिस्प्ले पे क्यों लगाई है, और अगर आपने लगाई है तो आपको मुझे बेचनी ही पड़ेगी. अगर बेचना नहीं था तो लगाना नहीं था डिस्प्ले पे. तो whether we can say that, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बाय लॉ आंसर इज़ नो, बिकॉज जब कोई चीज़ डिस्प्ले पे लगी होती है, दैट इज़ इनविटेशन टू ऑफ़र. वो ऑफ़र को इनवाइट करने के लिए लगी है. जब हम जाके कहते हैं कि भैया ये पेन कितने की है, तो दैट इज़ वी आर मेकिंग एन ऑफ़र टू दैट शॉप ओनर कि हम उसके पेन को ख़रीदना चाहते हैं. तो ऑफ़र तो हम दे रहे हैं ना कि पेन को हमें ही ख़रीदना है. अब इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना या फिर इस ऑफ़र को रिजेक्ट करना तो प्रपोजी का काम है, दैट इज़ ऑफ़री का काम है. ऑफ़र हमने दिया कि पेन हमें परचेज़ करनी है आपके शॉप से, ये वाली. ऑफ़र को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कौन करेगा? दुकान वाला, दैट इज़ शॉप ओनर. तो यानी कि वो आपको वो पेन जो डिस्प्ले पे लगी थी, जो आपको अट्रैक्टिव लगी थी, उसे बेचने से मना कर सकता है. बिकॉज ऑफ़र को एक्सेप्ट करना या ऑफ़र को रिजेक्ट करना ऑफ़र ही का काम है. इट मीन्स अगर उसने ये कहा कि भाई मैं डिस्प्ले पे मैंने लगाया है बिकॉज इट इज़ अ इन्विटेशन टू ऑफ़र, आई एम इन्वाइटिंग यू पीपल कि आप लोग आइए और मुझे ऑफ़र दीजिए मेरे दुकान से सामान को बेचने का और आपको ख़रीदने का. डिस्प्ले पे लगी हुई चीज़ें क्या होती हैं? इन्विटेशन देती हैं ऑफ़र को. वो देखकर हमने ऑफ़र दिया पेन को ख़रीदने के लिए. बट अगेन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज़ इन द हैंड्स ऑफ द प्रोमिसी ओनली, दैट इज़ ऑफ़री. तो वो अगर चाहे तो एक्सेप्ट करेगा. उसको आपका प्रपोज़ल या आपका ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट करना है तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा. तो ये शॉप ओनर की हैंड्स में है कि वो आपको वो पेन बेचेगा वो या नहीं बेचेगा. यानी कि वो नहीं भी कर सकता है, बिकॉज डिस्प्ले पे पेन लगाने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको ऑफ़र दे रहा है, वो आपको इन्विटेशन टू ऑफ़र दे रहा है. ओके, तो इन दैट केस दुकान वाला आपको मना कर सकता है
कि ये पेन मैं आपको नहीं दूंगा, मेरी दुकान है, मेरा डिस्प्ले है, मेरी मर्जी मैं किन चीज़ों को डिस्प्ले पे लगाऊं या किन चीज़ों को डिस्प्ले पे ना लगाऊं। यू कांट से दैट कि अगर आपको बेचना नहीं था तो आपने यहाँ पे रखा क्यों है। वो रख सकता है वहाँ पे, डिस्प्ले पे लगा सकता है, ही हैज़ दैट राइट्स। तो ये इनविटेशन टू ऑफ़र का एक एग्जाम्पल था। One more example, because it is very important to understand the difference between the invitation to offer and offer. इसके अलावा देखो सेम चीज़ रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो। व्हेन वी गो टू द होटल्स एंड ऑल, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम मेन्यू को चेक करते हैं। इट्स लाइक आप सुबह के 10 बजे चले जाओ या मॉर्निंग के 8 o'clock को चले जाओ या शाम के 4 बजे चले जाओ। तो अगर आप सुबह के 8 बजे मॉर्निंग की 8 को अगर आप बोलो कि हमको लंच ऑर्डर करना है, तो समटाइम्स दे से कि नहीं लंच की थाली आपको अभी नहीं मिलेगी, आप 1 बजे आइए। या समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम मेन्यू में देखते हैं देयर इज़ लिस्ट ऑफ मोर देन 100 डिशेस, बट कोई डिश हम ऑर्डर करते हैं तो ऐसा होता है कि वो बोलते नहीं ये डिश अभी अवेलेबल नहीं, ये सीजनल डिश है तो आपको सीज़न में मिलेगी। तो समटाइम्स सीजन्स को लेके इश्यूज़ आते हैं। समटाइम्स उनके पास वो कुक अवेलेबल नहीं होता है कि बोलते नहीं अभी आपको चाइनीज़ फूड नहीं मिलेगा, चाइनीज़ बनाने वाला 7 बजे आएगा। तो ये जो कुक का इशू है या फिर ये जो टाइमिंग का इशू है, दैट इज़ लंच टाइम नहीं है, टी टाइम नहीं है, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, तो हम वहाँ पे जाके ऐसे नहीं बोलते ना कि भाई अगर तुमको ये सामान देना नहीं था तो आपने मेन्यू में क्यों लिखा है। इट्स लाइक आपने मेन्यू में तो लिखा है लंच, देयर इज़ ऑप्शन मेन्यू में कि लंच इज़ अवेलेबल सो एंड सो अमाउंट, तो आपने मेन्यू में लंच डाला ही क्यों जब आपको लंच प्रोवाइड ही नहीं करना था। वी आर्ग्यू इन दैट मैनर? नहीं, हम ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, ऐसी कोई बात कहते हैं? नहीं। वाई वी डोंट से, हम झगड़ा क्यों नहीं करते कि भाई अपने मेन्यू में जितनी चीज़ें लिखी हैं आपके पास सारी अवेलेबल होनी चाहिए, जब कोई जो मांगेगा वो तब आपको उस वक्त वो चीज़ अवेलेबल करा के देनी चाहिए। ऐसा होता है? नहीं। क्या आप इस पॉइंट पे बेस्ड हो कि स्यू कर सकते हो कि मुझे लंच इन्होंने मेन्यू में मेंशन किया हुआ था, सुबह के 8 बजे मैंने लंच की थाली मांगी, इन्होंने नहीं दिया, तो ही इज़ लायबल टू पे कंपनसेशन टू मी बिकॉज इन्होंने उनके मेन्यू में वो चीज़ मेंशन किया था। वेदर वी कैन डू दैट? क्या हम इन दिस सिचुएशन में स्यू कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। रीज़न अगेन बिकॉज ये जो पैम्पलेट है, ये जो मेन्यू है, इट इज़ इन्विटेशन टू ऑफर। ये ऑफ़र को इनवाइट कर रहा है। व्हेन वी गो टू द रेस्टोरेंट एंड वी से अ कप ऑफ अ टी और अ डोसा, इट मीन्स वी आर ऑफरिंग दैम कि हमको ये चीज़ आपके शॉप से या आपके होटल से परचेज़ करनी है। नाउ इट इज़ देयर डिसीजन कि वो हमको वो चीज़ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। इट इज़ देयर डिसीजन होटल वाले का। तो अगर भाई अवेलेबल है तो देंगे, नहीं अवेलेबल है तो नहीं देंगे। इन दिस सिचुएशन वी कैन गो एंड स्यू, हम यहाँ पे केस नहीं कर सकते बिकॉज अगेन दिस इज़ इन्विटेशन टू ऑफ़र। तो ये जो पैम्पलेट्स होते हैं ये भी इन्विटेशन टू ऑफ़र की कैटेगरी में आते हैं या फिर यू कैन से एन एग्जाम्पल्स में आते हैं। इंक्लूडिंग अगर ऐसा हो ये कंपनी के शेयर्स, मैंने ये भी बताया आपको। अब देखो अगर कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट इशू करती है, कोई भी कंपनी है, कोई पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है जो मार्केट में अपने शेयर्स को रिलीज़ कर रही है, तो वो आपको शेयर्स से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देती है। जगह जगहों पे पैम्पलेट लगा दिया है कि भाई हमारे कंपनी का जो है वो टेंडर निकलने वाला है, सो एंड सो शेयर्स आने वाले हैं, सो एंड सो रेट में आने वाले हैं, हमारे पास 100 शेयर्स हैं 50 रुपीज़ के। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हो वो इस फॉर्म को फिल करके हमारे पास भेज दें। तो अगेन ये जो एडवर्टाइजमेंट है जो कंपनी ने इशू किया है, क्यों? उनके शेयर्स को परचेज़ करने के लिए। दिस एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट ऑफर, इट इज़ इन्विटेशन टू ऑफर। तो व्हेन वी फाइल एन एप्लीकेशन, जब हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और कंपनी को देखते हैं दैट येस वी आर इंटरेस्टेड इन योर कंपनी शेयर्स, मैं परचेज़ करना चाहता हूँ, तो जब आप एप्लीकेशन फिल करके कंपनी को देते हो, इट मीन्स यू आर ऑफरिंग दैम कि आप उनके कंपनी के ऑफर्स को परचेज़ करना चाहते हो। दैट इज़ उनकी कंपनी के ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए उनके कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करना चाहते हो। नाउ कंपनी के पास तो 100 शेयर्स ही हैं,
पता चला एप्लीकेशन 1000 आ गया पब्लिक से। अब 100 शेयर्स को कंपनी 1000 लोगों को तो देगी नहीं। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम स्टार्टिंग के 100 जिनके भी एप्लीकेशंस आए हैं, हम उनको प्रिफरेबली शेयर्स उनको दे देंगे, रिमेनिंग वाले को उनके पैसे रिफ़ंड कर देंगे। तो जो रिमेनिंग वाले हैं, रिमेनिंग पब्लिक जिनको नहीं मिले शेयर्स, क्योंकि कंपनी के 100 शेयर्स ही थे, वो रिमेनिंग पीपल्स भी ये नहीं बोल सकते कि भाई आपने तो पैम्पलेट लगाया था शेयर्स इशू करने का, तो आपको हमको ही देना चाहिए था। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो जो एडवर्टाइजमेंट है दैट इज़ इन्विटेशन टू ऑफ़र। फिर ऑफ़र हमने जाके दिया कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स को लेना है, अब मुझे वो शेयर्स देना है या नहीं देना है, ये ऑफ़र एक्सेप्ट या रिजेक्ट कौन करेगा? कंपनी करेगी। दे हैव पावर टू डिसाइड दैट दे हैव टू एक्सेप्ट ऑफर और नॉट। तो फिर दे विल डिसाइड। अगेन इन दिस सिचुएशन ऑल्सो वी कैन गो टू द कोर्ट एंड सी कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था और मुझे शेयर्स नहीं दिए, दूसरे 100 लोगों को दे दिए। ऐसा कोई केस हम नहीं कर सकते। वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यू कैन टेक फॉर इन्विटेशन टू ऑफर, दैट इज़ इन केस ऐसा हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट आया है टीचिंग के जॉब के लिए। मतलब कि कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट आया है लॉ प्रोफेसर, अकाउंट प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। ऑफ कोर्स 1 2 3 4 की रिक्वायरमेंट होगी, बट व्हाट हैपेंस जब एडवर्टाइजमेंट आता है जॉब के लिए, तो उस एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, 1 2 3 4 की रिक्वायरमेंट है ना, बट एप्लीकेशंस या कैंडिडेट्स कितने आते हैं, मोर देन 50 या मोर देन 100 या 500 फॉर अप्लाइंग फॉर दैट जॉब। तो हम कॉलेज को जाके ये नहीं बोलते कि भाई आपने एडवर्टाइजमेंट दिया था, आपको लॉ के लिए कैंडिडेट चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है, मेरे पास वो एलिजिबिलिटी है, मैं लॉ के लिए अप्लाई करने आई हूँ, तो आपको मुझे लेना ही पड़ेगा। इट्स लाइक अगर आपको मुझे जॉब पे नहीं रखना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट आपने क्यों दिया, आपको एडवर्टाइजमेंट देना ही नहीं चाहिए था। और अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है तो मैंने एप्लीकेशन दिया है तो आपको मुझे जॉब पे रखना ही पड़ेगा। वी से दैट? नहीं, वी डोंट से दैट। वाई? अगेन दैट notice is invitation to offer. When we go to the college and when we give interviews in that college, it means we are offering them कि हम उनके कॉलेज में अपनी सर्विस देना चाहते हैं, हम उनके कॉलेज में इस जॉब या इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं। नाउ अगेन इट इज़ द डिसीजन ऑफ द कॉलेज कि वो आपके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का पावर इज़ ऑलवेज विद द प्रोमिसी और यू कैन से ऑफरी। तो ये तो ऑफरी का पावर है ना कि वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो कॉलेज विल डिसाइड कि कितने कैंडिडेट्स आए हैं, उसमें से कौन से कैंडिडेट्स को उनको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं सिलेक्ट करना है, तो दे विल डिसाइड। और इस पॉइंट पे अगेन आप जाके स्यू नहीं कर सकते। अगर आप करोगे भी तो बट ऑब्वियस यू विल लूज़ द केस, बिकॉज वी ऑल नो कि ये जो पैम्पलेट्स होते हैं, ये जो नोटिसेस होती हैं, ये सब क्या है, दीज ऑल आर अ इन्विटेशन टू ऑफर। ये सब इन्विटेशन टू ऑफ़र मानी जाती हैं, ये सब डायरेक्ट ऑफ़र नहीं है। दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द ऑफ़र एंड इन्विटेशन टू ऑफ़र इज। ओके, सो here we ends with the essential conditions for the valid proposal is, ज़्यादातर ये जो इन्विटेशन टू ऑफ़र है इसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है ऑक्शन सेल वगैरह में। इट्स लाइक ऑक्शन सेल के लिए भी जो बिडर्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे ऑक्शनरीज जो आते हैं, उसके लिए भी क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है अगेन इट्स ए इन्विटेशन टू ऑफ़र। ऐसा नहीं होता ना कि ऑक्शन सेल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आया है, ऑक्शन सेल इसमें तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले ना, देयर आर टू मेनी पीपल्स गोइंग टू पार्टिसिपेट। जिनको भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा सब लोग करेंगे। तो ऑक्शन सेल में हम जाके ऑफ़र करते हैं कि हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसकी ऑक्शन हो रही है, हम उस प्रॉपर्टी को सो एंड सो अमाउंट पे एक्सेप्ट करते हैं खरीदने के लिए। ये बिडर से स्टार्ट होता है, बिडिंग से स्टार्ट होता है ऑक्शनीज का। अगर इट्स अप टू द ऑक्शनरी कि वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, बट जो प्रपोज़ल आपको आया है, जो पैम्पलेट या जो एडवर्टाइजमेंट है ऑक्शन के लिए, उसे हम ऑफ़र नहीं कहेंगे। तो इन एन ऑक्शन सेल में क्या होता है,
जो ऑफ़र होता है वो प्रोसीड करता है फ्रॉम द बिडर, और जो ऑक्शनर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे उस ऑफ़र को ख़रीदना है या कि नहीं। जैसे कि प्रॉपर्टी की बिडिंग हो रही है, आई एम सेइंग कि 10,000 तक देने को तैयार है, तो जनरली व्हाट दे डू 10,001, 10,002, 10,003, इट मीन्स बिडिंग हो रही है। ये बिडिंग में जो ऑक्शनर्स होते हैं, जैसे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो डिसाइड करेंगे ना कि उनको 10,000 वाला ऑफ़र एक्सेप्टेड है या नहीं। अगर एक्सेप्टेड है तो वो उससे एक दो और ज़्यादा बोल के एक्सेप्ट करेंगे, नहीं एक्सेप्टेड हो तो नहीं करेंगे। ओके, तो और ये जो एक्सेप्टेंस होती है इन केस ऑफ ऑक्शन सेल्स में, इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम सिग्निफाइड बाय द फॉल ऑफ अ हैमर। फॉल ऑफ अ हैमर से हम कंसिडर करते हैं कि ऑक्शन सेल ख़त्म हो चुका है, अब आगे बिडिंग नहीं होगी। हाँ, बट देर इज़ वन मोर थिंग, दैट इज़ ऑफ़र जो हम देते हैं ऑक्शंस में, वो हम विड्रॉ भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ बिफोर एक्सेप्टेंस। मतलब ऑफ़र जो दिया गया है, इट्स लाइक मैंने बोला हाँ ठीक है मेरी प्रॉपर्टी ऑक्शन में डाल दो, ओके, बिडर्स आ गए, उन्होंने ऑक्शन के लिए बोल दिया 10,001, 10,002, 10,003। इससे पहले कि इस ऑफ़र को कोई एक्सेप्ट करे, सडनली मैं उस ऑफ़र को रिवोक भी कर सकती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बिडिंग ही नहीं करवानी है, मेरे पैसे अरेंज हो गए हैं, आप मेरा पैसा ले लो और मेरी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में से हटा दो। तो इट मीन्स जब तक कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है ऑफ़र कैन बी विड्रॉ, जब तक कि एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। टिल देन किसी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया है, उससे पहले आप आपके ऑफ़र को विड्रॉ कर सकते हो। सो जो एडवर्टाइजमेंट इशू किया गया था, दैट इज़ इन्विटेशन टू ऑफ़र। तो इन्विटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र दोनों में अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन देखो तो ऑफ़र कैसा होता है, जस्ट रेडी टू बी एक्सेप्टेड, जो सिंपल ऑफ़र होता है। सिंपल ऑफ़र, ए इज़ ऑफरिंग टू बी मेरा हाउस 10,000 में ख़रीद लो, बी ने हाँ किया नहीं किया, तुरंत बात ख़त्म हो जाती है, जस्ट रेडी टू बी एक्सेप्टेड। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफ़र में क्या हो रहा है, इन्विटेशन टू ऑफ़र में अभी टाइम लगेगा। अभी क्या हुआ है, पैम्पलेट है या फिर एडवर्टाइजमेंट है या फिर इनविटेशन है या फिर मेन्यू है, अभी तो हम ऑफ़र को आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर वन स्टेप बैक। तो ऑफ़र इज़ जस्ट रेडी टू एक्सेप्ट बाय द अदर पार्टी, बट इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या होगा, ऑफ़र को हम पहले इनवाइट करेंगे, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। Okay, so some of the examples which we discussed related to invitation to offer is any advertisement, as I said, a price list, window display, tenders, all these are the examples of invitation to offer. Okay, with this our definition of a proposal or essential valid of conditions of proposal ends here. Since we have a very less time, so हम एक short सा revision ही ले लेंगे, and from our next lecture we are going to start with our new topic, that is acceptance के लिए क्या essential conditions होंगे, that we will discuss in our next lecture only. A kind of a short revision again. So first point is definition. I think it's very much clear, that is what is an offer is. Essentialities का ही summary ले लेते हैं. That is offer is always in the form of a request. It means it should not be in a order form. ऑफ़र हमेशा से कैसा होना चाहिए, रिक्वेस्टिंग फॉर्म में होना चाहिए। ओके, रिक्वेस्टिंग फॉर्म में होना चाहिए मीन्स रिक्वेस्ट के फॉर्म में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दैट आई एम सेइंग ए बी को ऑफ़र कर रहा है कि भाई मेरा घर खरीद लो। अब हम ऑफ़र ही करेंगे इन अ वेरी सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज में, दैट प्लीज़ हैव माई हाउस और परचेज माई हाउस इन सो एंड सो अमाउंट। डिक्टेटिव फॉर्म में यानी कि धमकी देने वाला या फिर डराने वाला या ऐसे किसी फॉर्म में वी आर नॉट गोइंग टू गिव एन ऑफर टू एनीवन। लीगल रिलेशंस में हमने क्या डिस्कस किया, दैट इट शुड बी इन अ लीगल फॉर्म। लीगल रिलेशंस में ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, इंटेंशन लीगल होना चाहिए, काम लीगल होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने वाला कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होंगे तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, और किसी भी तरीके का लीगल रिलेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल नहीं है तो फिर वैलिड नहीं है।
टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट, एम्बिगुअस, सर्टेन में हमने क्या पढ़ा कि जो ऑफर है इट मस्ट बी वेरी क्लियर विदाउट एनी एम्बिगुअस, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, विदाउट एनी वेगनेस, मतलब किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी वेरी क्लियर इन नेचर. Next, we have discussed about that an offer can be expressed or implied form of a circumstances. That it can be any form that is implied or expressed. As we earlier discussed, it may be in a oral or writing or implied. It must be communicated. Next point, it means it should be communicated, मतलब कि बता के ही रखना है. अगर आपको ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं किया गया है तो जो भी बेनिफिट या फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आप उसको एंटरटेन नहीं कर सकते. कंडीशनल, इट मे बी कंडीशनल, बहुत सारे कंडीशंस या कंडीशंस को आप इम्पोज कर सकते हो. बहुत सारे करो, कम करो. द थिंग इज़ बोथ द पार्टी शुड बी एग्रीड ऑन दैट. अगर दोनों भी पार्टी सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्रीड है तो आपका ऑफ़र कंडीशनल हो सकता है. इन्विटेशन टू ऑफ़र में हमने क्या डिस्कस किया कि देयर आर वेरियस थिंग्स जहाँ पे डायरेक्ट ऑफ़र नहीं होता है, जहाँ पे चीज़ों को इन्वाइट किया जाता है ऑफ़र इशू करने के लिए. मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स रिलेटेड इनविटेशन टू ऑफ़र भी शेयर किए, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. इसके अलावा वी विल हैव अ शॉर्ट रिविजन ऑफ ऑल टुगेदर ऑफ आवर इट्स लाइक होल 3 लेक्चर्स. तो जैसे कि हमने प्रपोजल एंड ऑफ़र के एसेंशियलिटीज़ को अभी देखा, इसके पहले हमने डिस्कस किया था अ शॉर्ट रिविजन, अ काइंड ऑफ अ समरी. नेक्स्ट लेक्चर से आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ फर्दर. हाँ, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, दैट इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग आवर इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो ओवरऑल इन अ समरी फॉर्म में हमने क्या डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये 1872 का एक्ट है. इट मीन्स इस ईयर में इसे बनाया गया था. 1 सितंबर 1872 को ये एनफोर्स में आया था, दैट इज़ इस दिन ये एप्लीकेबल हुआ था. देर इज़ टू मेनी सेक्शन, दैट इज सेक्शन 1, 2, सेक्शन 266, एक से लेके 266 सेक्शंस हैं इसमें. अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें से कि सेक्शन 1 to 75 जो है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, विच इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी. देन 76 to 123 सेल्स ऑफ अ गुड्स, इसको क्या किया, रिपील कर दिया गया है. दैट इज़ इस प्रोविज़न को हमने वहाँ से निकाल के इंडिपेंडेंट लॉज बना दिए हैं, अलग से एक्ट है हमारा सेल्स ऑफ अ गुड्स का. नेक्स्ट वी हैव अ सेक्शन 184 to 238, जहाँ पे हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखे हैं. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अवेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड ऑल, जिसे अगेन इट्स नॉट योर कप ऑफ टी. इट्स लाइक कि ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है इट्स स्पेशली फॉर द लॉ स्टूडेंट्स ओनली, बट फॉर योर नॉलेज शेक आई एम जस्ट टेलिंग द टॉपिक्स. दैट इज़ contract of agency and bailment is all given in the special contract. Then next we have a 239 से 266 का partnership act, again which is replaced or repealed by the government. So it is replaced or repealed means again we have a new law in this. We have a partnership act 1932 act, we have a 2008 का partnership and all. Okay, next we had discussed some definition, that is contract क्या होते हैं, void and voidable contracts क्या होते हैं. सो वेरी सिंपल फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज़ एग्रीमेंट्स विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट. वो सारे एग्रीमेंट्स जो लॉ में एनफोर्सेबल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. जो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होंगे, इनलीगल वाले होंगे, वो वॉइड कंसिडर किए जाएंगे, वॉइड वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे. वॉइडेबल क्या होगा, जहाँ पे पार्टीज़ के पास ऑप्शन होता है चूज़ करने का. मैंने माइनर एज के गर्ल के मैरिज का एग्जांपल दिया था वहाँ पे. देन वी कम टू द क्लासिफिकेशन के रिविजन पे अगर आप आओगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में हमने 5 to 6 टाइप्स का कॉन्ट्रैक्ट देखा था, जिसमें से कि वन वाज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हमने पढ़ा कि एक्सप्रेस में इट शुड बी इन ओरल और राइटिंग फॉर्म में. इम्प्लाइड यानी बिहेवियर और नेचर ऑफ द कंडक्ट से. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द मोरालिटी. ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि कैसे आए हैं, नाउ डेज़ की डे टू डे एक्टिविटीज़ या डे टू डे लाइफस्टाइल की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए लॉज के नाम भी हमने देखे, दैट इज़ वी हैव अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इन दैट देयर इज़ वन अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू विच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 का अमेंडमेंट. ये दोनों भी दीज टू, दैट इज़ बोथ द लॉज डील्स विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड्स when we shop
when we do shopping from the Meesho, Amazon and all. Next we have executed contracts. Executed contract में हमने क्या देखा था? It is contracts which is already we have performed it. चाहे वो आपने पार्टली परफॉर्म किया हो या फिर कम्प्लीटली परफॉर्म किया हो, एनी वन पार्टी ने परफॉर्म किया हो या दोनों भी पार्टी ने परफॉर्म किया हो, द थिंग इज आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया है, तो दैट इज़ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. और अगर आपने परफॉर्म नहीं किया है, वी आर स्टिल वी हैव ऑप्शन टू परफॉर्म इट. इट्स लाइक इन अ फ्यूचर वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट, तो फिर वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सेम एग्जांपल वी कैन टेक कि अगर हमने आज कॉन्ट्रैक्ट किया है घर बेचने का, लेकिन हम आज ना मैंने आपको पैसे दिए हैं ना आपने मुझे घर का पोजीशन दिया है. इट्स लाइक इस एग्रीमेंट को हम फ्यूचर में फुलफ़िल करने वाले हैं, तो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. देन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? दैट इज़ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. कि कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो वी नीड प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. पहली बात तो प्रपोजल होना चाहिए और उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होना चाहिए. और अभी इन दिस लेक्चर हमने डीपली डिस्कस किया कि किसी भी प्रपोजल को वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए. इट्स लाइक प्रपोजल तो होना ही चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, बट प्रपोजल कैसा होना चाहिए ये हमने अभी डिस्कस किया. दैट इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर्म में, लीगल रिलेशन, क्लियर वाला, एक्सप्रेस फॉर्म में, कम्युनिकेटेड. तो ऐसा होना चाहिए आपका प्रपोजल. प्रपोजल के साथ साथ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल पॉइंट होगा. विद दिस हमने कंसिडरेशन देखा था. दैट इज़ समथिंग इन अ रिटन. कंसिडरेशन भी कैसा होगा? लॉफुल होगा. इलीगल वाला कंसिडरेशन या फिर अनलॉफुल एक्ट वाला कंसिडरेशन नहीं चलेगा. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, दैट इज़ साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए. साउंड माइंड पर्सन के साथ साथ मेजर वाला इंसान होना चाहिए. नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए. ये कुछ कैपेसिटीज़ हमने देखी थी पार्टीज़ की. देन फ्री कंसेंट, दैट इज़ आपका जो कंसेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, इट शुड नॉट इंक्लूड द कोअर्जन एंड इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए. तभी हम ऐसे मानेंगे कि आपका कंसेंट फ्री है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. जो भी एग्रीमेंट में हम एंटर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. यानी ऐसा ना हो कि आप जिस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को कर रहे हो, कोर्ट ने उसको पहले से ही वॉइड डिक्लेयर करके रखा है. अगर पहले से वॉइड डिक्लेयर करके रखा है तो वैसा उस एग्रीमेंट या उस टॉपिक के लिए आप कोई ऑफर देते हो तो ऑफकोर्स दैट इज़ नॉट वैलिड. तो वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन to be a contract is also that agreement must not be expressly declared to be void. And last one we had discussed about the writing and registration. That is, if required by law, then there are various situations जहाँ पे हमको चीज़ों को writing में reduce करके रखना ही होता है. It is better for our evidence and for our benefit purposes. So in that case, अगर आप gift deed, mortgage deed या lease deed बनाते हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट अकॉर्डिंग टू लॉ कि आप राइटिंग में और डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन करा के रखें. ओवरऑल ये आज की टोटल समरी थी जो हमने आज के तीनों भी लेक्चर में डिस्कस किया. विद दिस वन बेसिक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज़ दैट इंट्रोडक्शन के टाइम पे हमने देखा कि ये जो एक्ट है ये पर्टिकुलर ईयर में बन के आया. इसमें इतने सेक्शंस हैं. ये डील करता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन से रिलेटेड टू जो सेल्स ऑफ गुड्स बोलो या पार्टनरशिप बोलो या डे टू डे एक्टिविटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट बोलो. बट वेदर यू पीपल नो दैट कि ये लॉज एक्चुअली बनते कैसे हैं और कौन बनाता है. तो एक्ट्स की बात अगर हम करें तो सिंपली ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये किसने बनाया और ये कहाँ से आया. सो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक्चुअली लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट्स. लॉज कहाँ से बनते हैं? हमारे पार्लियामेंट में बनता है. कैसे बनता है? इन ए शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर में सबसे पहले एक बिल ड्राफ्ट किया जाता है. बिल को आप समझ सकते हो अ काइंड ऑफ अ सैम्पल ड्राफ्ट. यानी कि कोई भी लॉ बनाने के पहले, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनने के पहले, इसमें जितनी भी सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, पहले हमने इनको एक सैम्पल ड्राफ्ट में राइटिंग में रेड्यूस किया था. तो जब आप सैम्पल ड्राफ्ट करते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस को, तो दैट पेज, दैट थिंग वी कॉल्ड एज अ बिल. तो यानी कि सबसे पहले बिल बनता है. उस बिल को लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस में इशू किया जाता है. वहाँ पे वो लोग देखते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, उसके लूपहोल्स निकाले जाते हैं, उसके बेनिफिट्स को डिस्कस किया जाता है, लेटर ऑन उसको अप्रूव किया जाता है.
जैसे ही ड्राफ्ट बिल को लोकसभा राज्यसभा से परमिशन मिल जाती है, दैट इज़ अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वैसे ही वहाँ से वो बिल कहाँ चला जाता है, हमारे राष्ट्रपति के पास, दैट इज़ विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जैसे ही इंडिया के प्रेसिडेंट उस पर अपनी साइन करते हैं, उसी दिन से हम उस लॉ को अपने कंट्री में एप्लीकेबल कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ 1 सितंबर 1872 को ये लॉ एप्लीकेबल हुआ था। इट मीन्स इस दिन हमारे प्रेसिडेंट ने इसी दिन इस एक्ट के सैम्पल ड्राफ्ट को, दैट इज़ बिल को, अपनी सिग्नेचर करके असेंट दी थी कि यस वी आर अडॉप्टिंग दिस लॉ फॉर आवर इंडियन सिटीजन इन कॉन्ट्रैक्चुअल केसेस। ओके, सो दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट द लॉज एक्चुअली आते कहाँ से हैं। तो वैसे मैक्सिमम टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लॉज हमेशा पार्लियामेंट्स ही बनाती है, वैसे लॉज पार्लियामेंट में ही बनता है, वही बनाती है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, समटाइम्स कोर्ट के सामने ऐसे सिचुएशंस अराइज होती हैं जिन पे हमारे पास लॉज अवेलेबल नहीं होते हैं। इन दैट केस व्हाट वी डू, इन दैट केस कोर्ट जो है वो ऑर्डर देती है इंडियन गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, कि भाई आप सो इन सो टॉपिक्स पे लॉ बनाइए, ऐसे ऐसे इश्यूज हमारे सामने आए हैं। क्योंकि जुडिशरी का काम क्या है, दैट इज़ कोर्ट का काम क्या है, टू एग्जीक्यूट, दे आर एग्जीक्यूटरी बॉडी, वो लॉज को बनाते नहीं हैं। लॉ बनाने का काम हमारी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट करती है। तो लॉज पार्लियामेंट को बनाती है और जुडिशरी में क्या होता है, लॉज को अप्लाई किया जाता है। यहाँ जो बातें लिखी गई हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस आप पढ़ रहे हो, लॉ में, कोर्ट में इसको अप्लाई किया जाता है। बट अगर कोई ऐसा इशू जज के सामने चला जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का चला जाए जिस पे हमारे पास लॉ अवेलेबल नहीं हो, तो फिर वो गाइडलाइंस इशू करते हैं। क्योंकि पूरा का पूरा लॉ बनाने का पावर तो उनके पास है नहीं। लॉ कैसे बनेगा, बिल बनेगा, फिर देन लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो टिल देन के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए, तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए व्हाट वी डू, कि कोर्ट क्या करती है, एक सिंपल गाइडलाइंस इशू करती है कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज नहीं है, तो हम कुछ गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं। जब तक गवर्नमेंट लॉ को बनाती है, टिल देन हम इस तरीके के इश्यूज़ को इन गाइडलाइंस पे बेस्ड होके शॉर्ट आउट करेंगे। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन था related to laws. With this session we are ending here only. नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि जैसे आज हमने देखा कि किसी भी ऑफ़र को, दैट इज़ प्रपोज़ल को वैलिड बनाने के लिए क्या इसेंशियल पॉइंट्स हैं, कि ऑफ़र में क्या क्या होना चाहिए, वैसे ही देयर आर सम एसेंशियल पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंसेस, कि ऑफ़री या प्रपोजी जब आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है तो फिर कौन से कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट करेगा, कौन से सिचुएशन में हम एक्सेप्टेंस को वैलिड कंसिडर करेंगे या फिर हम उसको वॉइड कंसिडर करेंगे। ये सारी बातें हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, दैट इज़ टुमारो मॉर्निंग। ओके, सो आई एम एंडिंग विद दिस सेशन हियर।